Hello students, welcome everyone. So here we are going to start with the blue text questions, or we call it as the in-text questions from the cell chapter. So I request everyone to sit with your NCERT textbook. You can pause the video and just grab the textbook fast. Okay, so the BTQ, or we call it as the blue text questions. जो सबसे पहला जो blue text question है that you will get in page number 59, and the best part is that if you go through the notes every question has been covered. तो I mean जो question repetitive है वो वाला मैंने cover नहीं किया है, but कुछ भी like कुछ questions ऐसे हैं जो typically logically बहुत अच्छा build up करना पड़ता है आंसर के लिए, तो मैंने वो वाला आपको mention कर रखा है. Okay, so let's go with the first question. पेज नंबर 59 में ब्लू टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ. ओके, ये 1 मार्कर्स में कभी आ जाता है, तो एवरीबडी नोज इट. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. उन्होंने क्या किया था, ही एग्जामिन्ड द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क विच इज स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, राइट. सो वॉट ही ऑब्जर्व दैट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्यों बताना पड़ रहा है, उन्होंने क्वेश्चन में हाउ भी पूछा हुआ है. So the cork resembled the structure of a honeycomb, right? And Hooke ने उसको क्या कॉल किया था, cellula or cellulae. So cellula is nothing but the Latin name for cells. So you have to give this much information for this particular question. So Robert Hooke discovered the cellulae, which is called as a cell, where in which he observed through a very simple microscope, very primitive microscope. क्या ऑब्जर्व किया था, हाँ, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ओके, अब कहने के लिए तो हम इस आंसर को बहुत लंबा भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 प्रोमिनेंट इसके पॉइंट्स बनते हैं. जरा ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले क्या है, वाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बिकॉज they have the capacity to perform certain basic functions. Okay, when I say the basic functions, the metabolic activities, be it respiration, nutrition, digestion, you call any specific activity that is performed by specific individual units, है ना. तो पहला पॉइंट तो ये आपको समझ में आ गया कि वो क्या करते हैं, दे परफॉर्म्स बेसिक फंक्शंस. दूसरा पॉइंट जो आपको देना है, ऑल हैव अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर. जैसे अभी हमने मेन स्ट्रीम काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलीज स्टडी किया, तो आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव a cylindrical shape, then you have a spherical shape of ribosome, है ना, and you have a network of membrane like endoplasmic reticulum. So everybody has a distinct structure. उसके बाद क्या है, सबका अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन है. डिवीजन ऑफ लेबर इसको बोलते हैं ना. सब लोग क्या कर रहे हैं, देर इज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन गिवन टू एवरीबडी, है ना. सो वी कॉल इट एज देर इज डिवीजन ऑफ लेबर. एंड देन फाइनली दीज ऑर्गेनली कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट एंड फंक्शन ऑफ द सेल. यही सेल ऑर्गेनलीज के वजह से सेल चल पा रहा है या सेल फंक्शन कर पा रहा है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया. सो अगर ये 4 पॉइंट्स आप डिस्टिंक्टिवली देते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है. एंड माइंडेड गाइस, साइंस में नेवर गो फॉर पैराग्राफ्स, ऑलवेज गिव द ब्रीफ पॉइंट्स. ओके, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी व्हेन यू गिव आउट द आंसर इन points, you fetch a very good marks. Okay, so that was all from 59 page. Now we'll move on to the next BTQ that you will get in 61 page. So 61 page में 2 questions है. Now this is an important question. उन्होंने पूछा है, how do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell. You have to discuss it. So जो carbon dioxide है, they move in and out of the cell through the process of diffusion. And you know that diffusion is basically the involvement of the movement of molecules, okay, from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Okay, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के वजह से कंटेंट के डिफरेंस की वजह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता रहता है. ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी वाटर मूव इन एंड आउट through the process of osmosis, and you know that it involves the movement of which molecules, only specifically water molecules, and that too through a semi permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration. यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Okay, so I'll just correct it the other way. From higher to
लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद एक मैंने नोट दिया हुआ है, ये नोट स्पेसिफिकली आप मेंशन करेंगे वाई, बिकॉज ये दोनों जो है दे आर फिजिकल एज वेल एज अ मैकेनिकल प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ एनर्जी, इट डजंट स्पेंड मच ऑफ एनर्जी, द एनर्जी विच वी टॉक अबाउट इन ATP। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर आप मान के चलो बहुत मिनिमल एनर्जी, बिकॉज ये एक फिजिकल प्रोसेस है। सो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? आई थिंक इससे ईजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर. So why it is that? Because it allows movement of only selected molecules across it and not all of them. So हम लोगों ने डे 1 से ही यही स्टडी कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज सेलेक्टिवली परमेबल. वाई? बिकॉज इट इज़ ओनली अलाउिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली स्पेसिफिक थिंग्स, राइट? ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम पार्ट 61 पेज, 2 questions. Now we will move on to the next one. Next one is like a table. पेज नंबर 68 63 है वो, या तो उसमें आपको 2 ब्लैंक्स दे रखा है और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है. एक्चुअली ये आप यूज़ भी कर सकते हो टू डिफ्रेंशिएट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, तो पहले तो उन्होंने साइज़ के बारे में दे रखा है. दूसरा हिंट क्या है, यूकैरियोटिक साइड में देखो, दूसरा क्या बता रखा है, न्यूक्लियर रीजन इज़ वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट इज़ व्हाट फॉर अ यूकैरियोटिक सेल. पर आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? पहले तो आप लिखेंगे इट लाइज इन साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली एंड इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट इज हाउ इट डिफरेंशिएट्स. ओके, सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट. देन इधर इज अ ब्लैंक इन द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में प्रोकैरियोटिक कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. बट आपको पता है कि यूकैरियोटिक में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. क्यों? हर एक मेम्ब्रेन का अपना क्या है, एक आउटर कवरिंग है, उसको बाउंडेड बाय सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, है ना? सो दैट इज द point to it. So that was only one question from page number 63. Now we will move on to page number 65. Yeah, so page number 65 में you have 4 questions. First question है, can you name 2 organelles we have studied that contain their own genetic material? Genetic material मतलब have their own ribosome and DNA. तो 2 लोग हैं उसमें, 2 organelles हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में स्पेसिफिकली कौन? Chloroplast. So we have 2 specific content or cell organelle from a cell specifically which have their own genetic material, which is mitochondria and chloroplast, which comes under plastids. Then इसके बाद okay, next question is one of the most important question. इसका structuring, इसका आंसर करने का तरीका बहुत ही स्पेसिफिक है, इसलिए ध्यान से समझेंगे. पहले तो क्वेश्चन पूछा है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? अगर आपका सेल का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ख़राब हो गया तो क्या होगा, तो सेल के साथ क्या होगा, ये पूछा हुआ है इन्होंने. ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेल क्या मेंटेन करके रखता है. एक स्पेसिफिक टर्म हम देते हैं. There is a specific term given to the organized cell. So organized cell always maintains a homeostasis. Now what do you mean by homeostasis? Homeostasis is basically a constant internal chemical composition. एक प्रॉपर सेल के अंदर एक कंटेंट वाइज और मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाइज एक बैलेंस बन के रखा हुआ है. उस बैलेंस को, उस केमिकल कॉम्पोजिशन के कांस्टेंट बैलेंस को ही क्या बोलते हैं? होम्योस्टासिस. ओके, homo actually something which is related to same or constant, right? So due to homeostasis what you see is there due to this homeostasis के वजह से क्या होता है, basic functions are performed properly. एंड आपको पता है बेसिक फंक्शन मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड मैनी अदर थिंग्स. ओके, सो एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड प्रॉपरली इस होम्योस्टासिस के वजह से. ओके, बट इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, तो क्या होगा? इट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द होम्योस्टासिस, यानी कि सेल्यूलर केमिकल कॉम्पोजिशन बिगड़ गया, जिसके वजह से क्या होगा? सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा? द सेल विल डाई. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू internally damage the homeostasis or the chemical composition of the cell. It will ultimately die because it will not be able to do the basic
chemical basic metabolic functions. So this was a very good question. इसको अच्छे से समझेंगे आप, अच्छे से करिए इसको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर दे जनरली गिव आउट दिस काइंड ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, है ना, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा आंसर्स के साथ. यू डोंट गो फॉर मच ऑफ द पैराग्राफ देयर, जस्ट बेसिक पॉइंट्स एंड फॉर दैट मैटर रेलिवेंट पॉइंट्स. बहुत ज़्यादा स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना हमें, है ना. ओके फाइन, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन. Why are lysosomes being called as the suicidal bags? So this is a very simple question. आप लोगों को पता है, lysosomes क्या होता है? They contain powerful enzymes. Enzymes वो होता है which have the capability to digest complex things, है ना. So होता क्या है, अगर lysosome का covering membrane break हो जाता है due to any kind of wear and tear or any injury, what happens then? The digestive enzymes will spill out over the cell content. Cell contents के ऊपर वो digestive enzymes गिर जाएगा and they can eventually digest them too. So lysosome burst out and can digest the whole cell itself. That is why they are called as suicide bags. Okay, so this is a very clear question and a very straightforward question which you get from lysosome. Why they are known as suicidal bags. Moving on to the fourth question, why are proteins synthesized? Where are proteins synthesized in the body? They are synthesized in a specific cell organelle known as ribosome. Simple as that. Okay, चलिए, तो ये था आपका बेसिक BTQ. इसको अच्छे से कवर अप करेंगे, बट बिफोर कंक्लूडिंग दैट आई वांट टू गिव अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल. इसको ज़रा कवर अप करते हैं. Then in the next part I will be discussing with the NCERT back exercise questions as well and some of the diagrams. So before that ज़रा देख लेते हैं. सबसे पहला तो अगर आप देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल को जब हम कवर करते हैं, एनिमल सेल दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, वेयर एज प्लांट सेल दे आर जनरली लार्जर इन साइज. ओके, एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल एब्सेंट है, वेयर एज प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है. ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल में प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे आपको? प्लांट्स में. सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल. एनिमल सेल में हमने जब वैक्यूल्स किया था, दे वर वेरी स्मॉल, आई मीन कंपैरेटिवली स्मॉल एंड टेम्पररी, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू टॉक अबाउट प्लांट्स द वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट, है ना. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स में देर इज़ अ हाई कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ गोल्गी एपैरेटस. हाई कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही आप ये मान के चलो बहुत ही डेंस है और बहुत ही आपका आई मीन कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा आप ये मान के चलो थोड़ा लेवल ऑफ व्हाट वी से डेंसिटी बोलो या फिर आई मीन स्ट्रक्चरिंग बोलो, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड प्लांट में अगर आप देखेंगे दे हैव अ सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी एपैरेटस, ठीक है. एंड फाइनली देर इज़ वन थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन एनिमल बट नॉट इन प्लांट, दैट इज सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम करके एक ऑर्गेनली है, वो प्लांट में नहीं है बट एनिमल में है. ये जनरली सेल डिविजन में काम आता है. There was a time when in 9th class they used to discuss a lot about these kind of what we say the neurological chapters like heredity and the control and coordination chapters. But अभी आजकल वो 9th class में नहीं है, क्योंकि उसी क्लास में they used to talk about a lot of about cell division, mitosis, meiosis, so many content. तो हालांकि आजकल 9th क्लास में इतना कंटेंट या उस सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है. सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस इन द लेटर क्लासेस, डोंट वरी अबाउट दैट. बट अभी के लिए सिर्फ अपना समझेंगे कि सेंट्रोजोम जो है वो सेल डिवीजन में काम आता है और वो सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट है, प्लांट्स में वो एब्सेंट है. ओके, सो ये था आपका BTQ सेशन एंड विद अ डिफरेंस. ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था, ये डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इसका आप notes properly बनाएंगे. You have any doubt and difficulty, just let me know. Right, in the next class we'll be covering with NCERT questions as well as some of the diagrams. So till then, thank you so much everyone. Please take care of yourself.